Thank you. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most अमेरिका अपनी उस respected जमीन को nation वापस on पाएगा earth, जो इसके लिए एकदम सही inspiring है. the awe and admiration of the entire world. A short time पूरी from now, we दुनिया are के लिए going to be changing the name of the Gulf of प्रभावी देश Mexico बनकर to the दिखाएंगे. Gulf of America, and we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs. President McKinley made our country very rich through tariffs and through talent. He was a natural businessman and gave Teddy Roosevelt the money for many of the great things he did, including the Panama Canal. पनामा कैनाल का जिक्र किया जिसे रूजवेल्ट ने बनाया था, और पनामा कैनाल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि हम उसे वापस लेने की कोशिश करेंगे. Ever spent on a project before, and lost 38,000 lives in the building of the Panama Canal. 38,000 लोगों की मौत हुई थी पनामा कैनाल बनाते वक्त. Never been made, and Panama's promise to us has been broken. पनामा का हमको दिया गया प्रॉमिस तोड़ दिया गया है. इस ट्रीटी को पूरी तरीके से वायलेट किया गया. Severely overcharged and not treated fairly in any way, shape or form, and that includes the United States Navy. And above all, China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China, we gave it to और Panama. इससे ऊपर and चीन we're अब taking पनामा it back. कैनाल को ऑपरेट कर रहा है जिसे अमेरिका ने बनाया, और हम इसे होने नहीं देंगे. Above all, my message to Americans today is that it is time for us to once again act with courage, vigor, and the vitality of history's greatest मैं अपने देश civilization. के लोगों से कहना So चाहूंगा, as we liberate our nation, we will पूरी lead हिम्मत के it साथ to new heights of नए victory समय and का मुकाबला success. करें, तैयार We रहें. will not be deterred. Together we will end the chronic disease epidemic and keep our children safe, healthy, हम and पीछे disease-free. नहीं हटेंगे जब तक हम The United क्रॉनिक States will डिसीजेस once को again consider मात itself नहीं a देते. growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. हम अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को मंगल पर भेजेंगे, जो वहां पर स्टार्स और स्ट्राइप्स को वहां पर मार्क करेंगे, यानी अमेरिका का झंडा मंगल पर एस्ट्रोनॉट लेकर जाएंगे. और एलन मस्क इसके बाद बहुत ज्यादा खुश होते हुए भी दिखाई देने लगे, क्योंकि उनकी ये योजना है. Is the lifeblood of a great nation, and right now our nation is more ambitious than any other. There's no nation like our nation. कोई भी देश हमारी तरह नहीं Americans are है. explorers, builders, innovators, entrepreneurs, and pioneers. The spirit of the frontier is written into our hearts. हमारे यहाँ The उद्यमी, call of the बड़े next व्यवसायी great सभी मौजूद adventure हैं. resounds from within our souls. Our American ancestors turned a small group of colonies on the edge of a vast continent into a mighty republic of the most extraordinary हमारे citizens पुरखों on ने earth. एक खाली comes कॉन्टिनेंट close. पर हमारे देश Americans को pushed बसाया, thousands of miles एक through a कॉलोनी rugged बसाई land जो अब एक शक्तिशाली देश है. untamed wilderness. They crossed deserts, scaled mountains, braved untold dangers, won the Wild West, ended slavery, rescued millions from tyranny, lifted billions from poverty, harnessed electricity, split the atom, launched mankind into the heavens, and put the universe of human knowledge into the palm of the human hand. If we work together, there is nothing we cannot do and no dream we cannot achieve. Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback. But as you see today, here I am. The American people have spoken.
I stand before you now as proof that you should never believe that something is impossible to do. मैं In आपके America, सामने the खड़ा हूं ये बात impossible बताने is के what लिए we do कि कुछ best. भी इम्पॉसिबल नहीं है। From New York to Los Angeles, न्यूयॉर्क from से लॉस Philadelphia एंजल्स, to Phoenix, from फिलाडेल्फिया से Chicago to फिनिक्स, Miami, from Houston to right here मियामी, in ह्यूस्टन Washington, और D.C. वॉशिंगटन, Our country was forged and built by the generations of patriots who gave everything they हमारे had हमारे for देश को our rights देशभक्तों and ने for बनाया our है। freedom. They were farmers and soldiers, cowboys and factory workers, steel workers and coal miners, police officers and pioneers who pushed onward, marched forward, and let no obstacle defeat their spirit or their pride. Together they laid down the railroads, raised up the skyscrapers, built great highways, won 2 world wars, defeated fascism and communism, and triumphed over every single challenge that they faced. हमने हर चैलेंज पर जीत After all हासिल we की have है। been through हमने together, we हाईवेज stand बनाए, on the स्काई verge स्क्रैपर of the बनाए, 4 greatest रेलवे years के in ट्रैक्स American बिछाए, history. हमने With your विश्व help, युद्धों we में will जीत हासिल restore की। America promise, and we will rebuild the nation that we love, and we love हम it एक so बार much. फिर से अमेरिका को We बनाएंगे, are one ऐसे people, देश one को जिसे हम family, बहुत and प्यार one करते हैं। glorious nation under God. So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I am with you, I will fight for you, and I will मैं win आपके for साथ you. हूँ, मैं We're आपके going to साथ win like लड़ूंगा, never before. मैं आपकी मदद के लिए हूँ, ऐसा कि जैसे पहले कभी नहीं था। Thank you. Thank you. Thank you. In recent years, our nation has suffered greatly, but we are going to bring it back and make it great again, greater पिछले कुछ दिनों than में ever हमारे देश before. को जो We will be a नुकसान nation हुए, like no other, जो full of सेटबैक्स आया, compassion, लेकिन हम courage, एक बार and फिर से इसे exceptionalism. ग्रेट बनाएंगे। Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent, and totally unpredictable. America will be respected again and admired again, including by people of religion, faith, and goodwill. We will be prosperous. We will be proud. We will be strong. हम And we गर्व will करेंगे, win हम like never before. बेहतर होंगे, We will हम not be वैभवशाली conquered. होंगे, We will not हमारा be दुनिया में एक बार intimidated. फिर से सम्मान We होगा, will not be broken. हम And टूटेंगे we will नहीं not fail. और From हम this day on, गिरेंगे the नहीं। United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly. हम हिम्मत के And साथ खड़े nothing will रहेंगे। stand in our way because we are हम बड़े Americans. The सपने देखेंगे। future is ours. And our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. हमारा स्वर्णिम काल बस अभी शुरू हुआ है। इसी शब्दों से राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी स्पीच, अपने संबोधन को शुरू किया था और हमारा स्वर्णिम काल अभी शुरू हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने अपनी स्पीच को खत्म भी किया। जहां से शुरुआत की थी वहीं पर लाकर बात रखी और इस बात का इशारा दिया कि इस शपथ के साथ अमेरिका का स्वर्णिम काल, गोल्डन एज शुरू हो गई है। वाकई आपने चिरपरिचित अंदाज में जो चुनावी सभाओं में भाषण दिया वही अक्षर से पूरी बातें उन्होंने दोहराई। और सबसे बड़ी बात जो कि अपेक्षित थी, माना जा रहा था कि दक्षिणी सीमा पर ये इमरजेंसी लगाएंगे और वाकई दक्षिणी सीमा पर आज से और अपने भाषण देते समय उस वक्त से इमरजेंसी लगा दी है। करीब 12 ऐसे देश हैं जो दक्षिणी देश हैं जो अमेरिका के आसपास आते हैं, जिनमें ब्राज़ील है, गुआना है, पैराग्वे है, सूरीनाम है, उरुग्वे है, वेनेजुएला, बोलीविया, ये तमाम जहां से बहुत ज़्यादा ड्रग्स तस्करी और अवैध घुसपैठ होती है, वहां पर इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। इसके साथ साथ उग्रवाद खत्म करने की बात, विदेशी उग्रवाद खत्म करने की बात, अमेरिका में जो ड्रग तस्कर हैं वो आतंकवादी घोषित हो चुके हैं। साफ तौर पर यह संकेत है कि अब ड्रग, जो कि एक सबसे बड़ा गढ़ है अमेरिका का, यहां पर बिल्कुल नहीं चलेगा। ड्रिल बेबी, ड्रिल यानी कि तेल और गैस,
अमेरिका की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और तेल और गैस निकालने की बात की गई है। एक से फिर से मैन्युफैक्चरिंग देश, कंट्री बनने की बात की गई है और गाड़ियों को भी, जो गाड़ियां बंद कर दी गई, दूसरी जगह से आयात की जाती थी, अब उन गाड़ियों को भी बनाने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ अपने ट्रेड सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि चाइना की ओर भी संकेत है, मैन्युफैक्चरिंग अब चाइना हो चुका है, उसे लेकर एक बेहतर संकेत दिया है। और इसमें तमाम जो दूसरे देश हैं उनके लिए भी एक सख्त संदेश दे दिया है। ये और अपेक्षा भी की जा रही थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया कि तमाम ऐसे दूसरे देश जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने ये कह दिया कि अब दूसरे देशों के भी हम टैक्स बढ़ाएंगे, यानी कि तमाम वो चीज़ें जो आयात होंगी उन पर हम टैक्स बढ़ाएंगे, उन पर हम टैरिफ बढ़ाएंगे। लेकिन इन सब के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए ये बधाई दी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने प्रोफाइल में कहा है, उन्होंने लिखा है, कांग्रेचुलेशन माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट एट रियल डोनाल्ड ट्रंप ऑन योर historic inauguration as the 47th president of the United States. I look forward to working closely together once again to benefit both our countries and to shape a better future for the world. Best wishes. ये शुभकामनाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है, यानी कि अब कंधे से कंधा मिला के संकेत एक आगे बढ़ो। स्वाभाविक ही था और ऐसा जताया भी जा रहा था। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की पिछली तस्वीरें तो इस बात की गवाही देती हैं कि इन संबंधों को किस दिशा में आगे जाना था। लिहाजा सबसे पहले उन्होंने बधाई दे दी शपथ लेने के बाद। हालांकि शपथ लेने से पहले व्लादिमीर पुतिन भी बधाई दे चुके हैं, यानी साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं, संकेत वहां से डोनाल्ड ट्रंप भी देते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2-3 बड़े फैसले लिए, जिनका जिक्र मनोज आपने किया, इसमें साउथ बॉर्डर को इमरजेंसी लगाकर सील करना और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना अमेरिका को, यानी वो चीन को जिस जगह चीन आज पहुंचा है, सबसे बड़ा डेंट, सबसे बड़ी चोट चीन पर लगाते हुए। उससे भी बड़ा संदेश, यानी कि पहले दिन का पहला क्षण आदमी कोशिश करता है कि अभी रहने दो, बाद में दिखेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि बात बाहर निकल कर आ गई। पनामा के जिक्र करने की बात कर रहे थे, पनामा कैनाल की जिक्र करने की बात कर रहे थे और दर्द निकल कर आ गया चीन का, चाइना का। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई पनामा जो कैनाल है उसको हम लोगों ने बनाया और चीन उस पर चढ़ाई कर रहा है, ये नहीं चलेगा। 38,000 शहादत दी हैं पनामा कैनाल को बनाने में और पनामा कैनाल का महत्व कम से कम वहां पर बहुत ज्यादा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर धीरज कौर, भारत अमेरिका संबंध विशेषज्ञ, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, विदेश मामलों के जानकार, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट, और तपन भारती, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक एक करके डॉक्टर धीरज की कॉल का मैं रुख कर लेता हूं भारत अमेरिका संबंध विशेषज्ञ के तौर पर। डॉक्टर धीरज, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जिन बातों का जिक्र आज किया है उसकी जड़ में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन दिखाई पड़ा है। पहले टर्म में अमेरिका फर्स्ट की बात थी, इस बार मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात है। हालांकि वो इस बात को कहना भी नहीं भूले कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत पिछले कुछ दिनों में पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ जिस तरीके से दिखाई पड़ी, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। धीरज कौल साहब। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, नीरज जी ने हमारे साथ नहीं है, उनके फोन की आवाज एक हल्की सी आई, तो डॉक्टर संदीप त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। संदीप जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी हाँ, जी हाँ। संदीप जी, जो सवाल राजीव का था उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत क्लियर था। उन्होंने अपने चुनाव के टाइम में ही, कैंपेन के टाइम में ही कुछ बातें बहुत क्लियर की और आज वही बात उन्होंने दोहराई। देखो, उन्होंने ग्लोरिफिकेशन की बात की कि अमेरिका के इतिहास को ग्लोरीफाई किया जाएगा और हमारा एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। और वो एक कहीं ना कहीं एक उनके अंदर एक टीस है कि जो चाइना का जो इमरजेंस है, जो वो इमरजेंस ट्रंप नहीं देखना चाहते, और स्पेशली अपने बॉर्डर के पास में। तो जो पनामा की बात किया उन्होंने, मैक्सिको की बात की, तो वो बहुत क्लियर है। ग्रेट अमेरिका जो
उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो कंसेप्ट है, ये एक लार्जर टेरिटोरियल एक्सपेंशन है। और इसीलिए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अमेरिका पिछले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में अफगानिस्तान में लगा था, एशिया में लगा था, यूक्रेन में लगा था, मिडिल ईस्ट में लगा था, यहाँ से ध्यान हटा करके ट्रंप अब क्या करना चाहते कि पहले आसपास के एरिया को अपने सेव करना चाहते हैं और उसको डोमेस्टिकली इन्फॉर्म करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा कि अभी साउथ बॉर्डर पे इमरजेंसी की बात कही, उन्होंने कहा यहाँ से तस्कर हटाएंगे, उन्होंने कहा से जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स उनको बाहर करेंगे। तो अमेरिका को अंदर से पहले वो ठीक करना चाहते हैं। दूसरा, इकोनॉमी को लेकर के बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि हम टैक्स लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, और उसके लिए कोई भी हो सकता है। भारत को बहुत खुश नहीं होना चाहिए। भारत के लिए ट्रंप ने कहा था कि इफ दे टैक्स अस वी टैक्स देम द सेम अमाउंट। तो देखो, अमेरिकी राजनीति बहुत यथार्थवादी होती है। हम लोग हमेशा पर्सनल केमिस्ट्री पर चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये वही ट्रंप है जो 1 महीने पहले बोले थे कि भारत ने हमारे 100% कुछ प्रोडक्ट ऐसे जहां पर टैक्स लगाए, तो हम भी उनके एल्युमिनियम और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर हम भी टैक्स लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये रिप्रोसिटी जो की बात है ट्रेड की लेकर के, तो आप दिख नहीं आउटर रहे थे ना। एक्सटर्नल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रंप बहुत टफ है, उनके लिए सब कोई बहुत प्री नहीं है, उनका इंटरेस्ट प्री होगा। और यदि इंटरनली देखेंगे तो वो अमेरिका को दुरुस्त करना चाहते हैं, वहाँ का क्रिमिनल जो इकोसिस्टम उसको सही करना चाहते हैं। और उन्होंने बाइडेन को एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार भी ठहराया कि बाइडेन की वजह से अमेरिका की आंतरिक स्थिति खराब हुई। तो कहीं ना कहीं दोनों फ्रंट पर उन्होंने अच्छी तरीके से अपनी बात रखी और अमेरिका के ग्लोरिफिकेशन की बात की, जो बार बार उन्होंने जब ये कहा कि गल्फ ऑफ अमेरिका होगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं होगा, और उसका जस्टिफिकेशन उन्होंने बताया कि मैक्सिको को किस तरह की बर्बाद किया गया। पनामा का जस्टिफिकेशन उन्होंने बता दिया कि हमारे लोगों ने शहादत दी है। तो ये तो वही बात हो गई जो पुतिन यूक्रेन के लिए कर रहे थे, आज वही ट्रंप अपने नेबरहुड में कर रहे हैं। तो बहुत कुछ अंतर नहीं है, बट ये जरूर है कि ट्रंप के आने से जो मिडिल ईस्ट में जो होगा, जो यूक्रेन में होगा, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। कुल मिलाकर ट्रंप ने एक संकेत दे दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि हाल के दिनों में जो भी सत्ता थी, उस सत्ता के कारण अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हुआ, अमेरिका में ड्रग्स का एक बड़ा कार्टेल खड़ा हुआ। जो सीमाएं दक्षिणी इलाके थे, उन देशों की जो सीमाएं थी, वो उन तमाम सीमाओं से अवैध घुसपैठ हुई, इस बात का भी जिक्र किया। साथ साथ उन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से राजनीतिक दुश्मनी निकाली जाती रही सत्ता के द्वारा और होगी। और इसे लेकर बाकायदा मेरी सरकार एक आदेश भी निकाली क्योंकि हम इस तरह का नहीं करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने आतंकवाद पर भी बड़ा फोकस किया, उन्होंने विदेशी उग्रवाद पर बड़ा फोकस किया कि यह सब नहीं चलेगा, उग्रवाद को खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका में जो भी ड्रग तस्करी करेगा वो अब आतंकवादी घोषित होगा और अवैध घुसपैठ तो बिल्कुल नहीं चलेगी। इसके साथ साथ अमेरिका की जो डामाडोल अर्थव्यवस्था है उसे मजबूत कैसे किया जाए, मुझे लगता है इसका रोड मैप वो पहले से तय कर चुके हैं, अपनी टीम के साथ डिस्कस कर चुके हैं, अपनी टीम मेंबर्स को वो बता चुके हैं और उसी में ये तमाम सारे शब्द निकल कर आए हों। चाहे वो टैक्सेस लगाने की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात हो, चाहे वो ड्रिल बेबी ड्रिल यानी कि ज्यादा गैस ज्यादा तेल निकालने की बात हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की बात हो, इसके संकेत उन्होंने साफ तौर पर दिए। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी। डॉक्टर संदीप, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी 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 जी, आप ही से सवाल है। जी आपने सही कहा कि जैसे कि अभी हम यही बात को कह रहे थे कि वो जब एक्सटर्नल पॉइंट की बात करते हैं, बाहरी दुनिया की बात करते हैं, तो उनके सबसे बड़े 2 औजार वो हैं उनका टैक्स और टैरिफ। ये इस बात का इंडिकेशन है कि अमेरिका की जो राजनीति है इकोनॉमिकली बहुत बूस्ट करना चाहते हैं। और देखिए, अपने कैबिनेट में उन्होंने विवेक रामास्वामी को रखा और उनको डिपार्टमेंट क्या दिया कि डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अमेरिकन डिपार्टमेंट। दैट मीन्स कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको लिबरेट करने की उनको कोशिश होगी, जो रेपटिज्म है उसको खत्म करने की कोशिश होगी। और साथ ही उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात है, काश पटेल को कहाँ रखा, उन्होंने उनको एक स्पेशल एडवाइजर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। तो एक तरह से उनका जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो बहुत ही समावेशी है और फोकस्ड इस बात को लेकर के है कि वो आईटी सेक्टर में अलग कुछ करना चाहते हैं। पांव पालने में दिख जाते हैं सर। और डोनाल्ड ट्रंप का ये भाषण वैसे ही दिखाई पड़ रहा है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मेरे साथ हैं। मेजर,
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं पीस की बात करने आ रहा हूं, और इसके बाद उन्होंने अगला सेंटेंस हॉस्टेजेस की रिलीज से जोड़ा जो हमास की कैप्टिविटी में थे। इसके साथ उन्होंने ऑल जितने भी वॉर्स हैं उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि हम अमेरिका को रेस्पेक्टेड पोजीशन में पहुंचाएंगे और मैं पीस को आगे लेकर बढ़ना चाहूंगा। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं उसको जमीन पर उतारना आपको उतना आसान लगता है अलग अलग चल रहे वॉर को देखते हुए? मनु जी, डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही एक मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी है, लाइक अ बुल इन चाइना शॉप, और उनने जितनी बातें कही हैं वो नई नहीं है। वो पिछले टर्म भी कहते आ रहे थे, और खासकर इस दफा इलेक्शन की रैली तक में बहुत जोरों से उनका व्याख्यान किया था, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस दफा जब वो जीत के आए हैं जी, तो बहुत ही तगड़े तरीके से जीत पे आए हैं। खुद प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के अलावा भी उनकी पार्टी ने सेनेट में और हाउस में भी बहुमत प्राप्त किया है। ये अमेरिका के लिए बहुत ही नई सी चीज़ है। अगर पिछले 50 साल देखेंगे तो एक पार्टी के प्रेसिडेंट रहते थे और दूसरी पार्टी उनको कंट्रोल करती थी हाउस और सेनेट के द्वारा। तो ये कहना इनका कि हम ये सब करेंगे, लगता है उसमें कुछ बात दम है। देखिए, प्रेसिडेंट बनने के पहले ही उन्होंने इजराइल और हमास के बीच में शांति समझौता कर दिया जी, फोर्स कर दिया। आप देखेंगे अब तक जो इजराइल के प्रीमियर थे वो डिली डाली कर रहे थे कि हम लड़ाई चलाएंगे, और बात नहीं मान रहे थे अमेरिका, लेकिन इस बात को उन्होंने मान ली। लेकिन एक और बात में ध्यान देना आवश्यक है। ये पहली बार है 1992 के बाद में जो यूनिपोलर वर्ल्ड में चाइना एक उभर के एक बहुत नया शक्तिशाली देश आया है जो अमेरिका को चैलेंज कर, और अमेरिका को चैलेंज इकोनॉमिकली, साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा, और मिलिटरीली भी पैसिफिक में, इंडियन ओशन में कर रहा। तो ट्रंप साहब इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, और इसकी जितने भी जो प्रोफेसीज हैं, जो भी उनके कदम उठाए हैं, इसी के लिए रखे हैं कि चाइना की जो चैलेंजर है उसको काबू में कर दिया जाए। आपका सवाल था कि क्या ये अमेरिका स्ट्रांग बनना चाह रहा है, अफगानिस्तान से पीछे आया था। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वियतनाम की जो कहानी थी 1960 और 70 में, तब से अमेरिका पीछे आता रहा। अमेरिका गया था इराक में, अमेरिका गया था लीबिया में, क्या करके आया? कोई बहाने बनाए थे? तो वैसी बात नहीं है। दुनिया काफी